We all are gathered here for the 2-week Industria and Academia Engagement Program sponsored by IEEE. First of all, I would like to invite Professor Shantanu Chaudhary sir, Associate Director of Electrical and Electronics Engineering Department, to introduce our today's guest, Dr. Hira Lal. Please come on. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Dr. Hira Lal ji, Dr. Diwalia, Head of Department, Dr. Sanjay Maurya, and all participants. We are very thankful to have with us Dr. Hira Lal, IAS, Advisor, Model Gaon, UP, in the Industry Academic Engagement Workshop 2022. Dr. Hira Lal was born in Bagdi village in Basti district of UP and spent his schooling days in remote rural areas. He has seen extreme hardships, both individual and around, which shaped his belief in doing tangible in life and bring out sustainable changes in society. This propelled Hira Lal ji to study BTech Electrical Engineering from G.B. Pant University at Pantnagar, MTech from BHU IIT Varanasi, 1-year training course on public administration leadership in US, and finally completed PhD on ICT-enabled governance. After a stint at NTPC, he joined public service. His experience covers diverse fields like malnutrition and women health care, water conservation and groundwater harvesting and recharging, prison reforms, student and youth development, tourism development, enabling farmer prosperity through agro-entrepreneurship, awareness campaigns for increased voting percentage, startup innovation, campaign for popularizing yoga among the masses, rural women empowerment through entrepreneurship development, promotion and development of folk and local cultural activities, revival, promotion and development of local sports. And today, we are indeed lucky to have him with us. He will share his valuable experience. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Before moving to the session, I would like to invite respected dignitaries to release the book Dynamic DM, authored by Dr. Hira Lal. सचिन आप ये सही सर बीच में सीखो Thank you, respected sir. Now, I request Honorable Hira Lal sir to come over the stage and share his thought on today's topic, Model Gaon. First of all, I would like to welcome you all. And I would like to know who are the audience in this meeting hall, this classroom.
ईयर के बच्चे हो क्या? थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल सर, इलेक्ट्रिकल और थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल। यस सर। बड़े तेज लग रहे हो यार। थैंक यू सर। एक हमारा रिश्ता तय हो गया आपसे, बता सकते हैं क्या? One relation is established with you all. I am also electrical. Yes sir. Do you know it? Yes sir. बिरादरी को लंबे देखते हैं। So I am here to discuss you something regarding the Model Gaon, a book which is just unveiled by your director Sahab and we all. The name of book is the Dynamic DM. In our country, there is 3 posts which is very prestigious, very powerful, very useful, but challenging also. Do you know that? 3 posts. Can anybody can help me? IAS, IPS, ISS. PM, CM, and DM. I told you, tell me the 3 posts. PM, CM, and DM. these are very prestigious posts. One runs the country. One runs the country. PM runs the country. Yes sir. CM runs the state. And DM runs the district. So these 3 are really very amazing posts. But we see only one side of the coin. That is, this is having very good facilities, very power, paisa, and all that. But this is very challenging also. Do you know, if you one has to discharge the duties of these seats, how many hours one need to sleep? 6 to 7. तब तो PM सिम DM सिम सब चली जाएगी। 4. हाँ, 4 कम से 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोने को मिलेगा अगर if you really want to perform it. ये खान साहब का मैं आज इंटरव्यू देख रहा था। ये खान साहब फेमस है ना बिहार वाले। खान सर। तो उनका संदीप माहेश्वरी मैं आपके लिए डाल रहा हूँ बीच में, जिससे आप लोग इंस्पायर हो। तो खान साहब से संदीप माहेश्वरी ने पूछा कि आप कितने बजे सोते हो, क्या करते हो? तो कहा हम 2 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं और 4 बजे जग जाते हैं। हमारी पूरी टीम परेशान रहती है। What does it mean? It means to get into life something extraordinary, you must have some extraordinary habits. समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? अगर जिंदगी में कुछ करना है, अलग करना है, तो आपके अंदर कोई अलग क्वालिटी होनी जरूरी। अभी हमने आपको एक पेज दिया वो मॉडल गांव का, देखिए दिया कि नहीं दिया? सबके हाथ में लेके दिखाइए, सबको मिला कि नहीं मिला? देखिए, आप लोगों में से कितने लोगों ने इस मॉडल गांव की साइट को इतने देर में खोल के देखा? मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे ये पन्ना मिला आपको, तो आपको अब तक इसको 5 बार पढ़ लेना चाहिए था। और इसकी मॉडल गांव की एक साइट है which contains all the details. That site is telling all the details, all the information is there in that site. आप में से कितने लोगों ने खोल के उसको देखा? How many of you have seen by opening this site? किसी ने नहीं देखा। ये बात सही है ना? नहीं देखा। यही हमारी आदत है और ये हमें कहाँ ले जाता है? बहुत बुरी जगह पे लैंड करता है हमें। अभी आप मौर्य जी से आपके प्रोफेसर साहब, मुझे जाना है यहाँ के बाद दूसरे डेस्टिनेशन पे किसी एक मीटिंग में, और मेरी अभी से तैयारी, उसको भी जैसे मैं गाड़ी से उतरा का बोला कि भाई तुम्हें लोकेशन देख लेना, टाइम कितना लगे। इट मीन्स यू आर नॉट अटेंटिव टू नो। अभी मेरा एक जो स्टॉक का जो स्टॉक वालों ने बुलाया था, मैंने उसमें एक टॉक दिया था। ये नोट करिए, आज से इसको अपनी जिंदगी में उतारिए। जानने की जिज्ञासा, नोट कर लीजिए कहीं, जानने की जिज्ञासा, ठीक है, और सीखने की ललक। दूसरा पॉइंट, जानने की जिज्ञासा,
सीखने की ललक और पाने की जिद, ये तीनों क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर लीजिए, तभी कहीं आगे जा पाएंगे। ठीक है, अन्यथा आसान नहीं है जिंदगी, जिंदगी में बहुत संघर्ष है। तो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, आई ट्राइड टू नो वेदर एनीबॉडी हैव सीन द मॉडल गांव साइट बाय ओपनिंग इट, नोबडी। इसका मतलब क्या हुआ कि द फर्स्ट पॉइंट, जानने की जिज्ञासा, वो आप में है ही नहीं। तो जब आप में जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो गुरु जी आपको कितना, आपके दिमाग में कितना ठेला ठाली करके डाल देंगे नॉलेज। आपको ये पता है कि एक IAS अफसर हैं, वो आ रहे हैं लेक्चर लेने, उन्होंने आपको मटेरियल दिया, मैंने अपने आपका विजिटिंग कार्ड भी दिया है कि नहीं दिया है? तो आप मेरा विजिटिंग कार्ड दे करके उसमें बहुत सारे हमारे बारे में ही पढ़ लेते। साइट है, उस पर एक मेरी एक सोशल साइट है, मेकिंग यू हैप्पी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आप सभी लोगों को कुछ दे के जाना चाहता हूँ। जो मेरे सफलता का राज है वो क्या है? यही 3 चीज, जानने की जिज्ञासा, दूसरा क्या है? सीखने की ललक, सीखने की ललक, और पाने की जिद। जो एक बात समझ में आ गया कि इसे पाना है, तो तब तक नहीं सोएंगे जब तक वो मिल नहीं जाए। हाँ, ये जिद है, और यही कारण है कि आज मैं आपके सामने यहाँ ऐसे बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ टाइम लिमिटेड है, तो आई विल टच ओनली द पॉइंट्स skeleton. I cannot go into the details because that requires time. अभी मैंने जो एक किताब लिखी है डायनेमिक गेम की, ये अब 175 रुपए की है, वैसे इसकी कीमत तो 250 है, बट राइट नाउ वो जब थोड़ा पुराना हो जाता है, 6000 कॉपी बिक गई है, तो डाउन करते हैं। तो 175 रुपए को कल ही किसी ने खरीदा, मेरे को भेजा था। इसको पढ़िएगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किताब हमने लिखी है इसलिए पढ़िएगा, आप इसलिए पढ़िएगा कि उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? इंस्पिरेशन मिलेगा। हो सकता है वो इंस्पिरेशन इतना अच्छा, इतना प्रभावी, इतना मजबूत हो जाए कि आप भी किसी दिन इसी तरह से लेक्चर दो जैसे मैं आज आपके सामने लेक्चर दे रहा हूं। पढ़िएगा, क्योंकि उसको मैंने इस किताब में जो बातें मैंने लिखी हैं सबके सबूत लगाए। ठीक, जैसे मैं प्राइमरी का पढ़ा हूं, और मैं टाट पट्टी लेके जाता था। पहले सब मैक्सिमम आदमी प्राइमरी में ही पढ़ते थे, गांव वाले। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, देहाती आदमी हूँ, तो मैं प्राइमरी में पढ़ता था, और टाट पट्टी वाला हूँ प्राइमरी का। इतना बड़ा छत नहीं, इसका आधा छत था, उसमें 1 से 5 तक था, वो चूता था। तो हम लोग जब चूता था तो यहाँ चूने लगा, यहाँ ऐसे घूमते रहते थे। और उन विषम परिस्थितियों में मुझे IAS बना दिया। क्यों? मेरा एक सपना था, मुझे IAS बनना है। एक दूसरी बात आप लोग नोट करिए, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। क्या? एवरी अपॉर्चुनिटी। जब हमारे जिंदगी में कोई संकट आता है तो हम कहते हैं अरे बड़ा बुरा हो गया, बड़ा खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके लिए, वो क्राइसिस आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको मजबूत बनाने आया है, वो आपको कुछ देने आया है। एवरी क्राइसिस इज एसोसिएटेड विद सम अपॉर्चुनिटी, बट वी नेवर look at the positive side of the crisis. We always look at the negative side of the crisis. ये भी मेरी जिंदगी का एक तजुर्बा है। क्या? कि क्राइसिस जिसके जिंदगी में नहीं आया वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, जो फेल नहीं हुआ वो पास हो ही नहीं सकता। क्यों? जब आपके सामने क्राइसिस आती है तो आप मजबूती से लड़ते हो, दिमाग भी लड़ता है, शरीर भी लड़ता है। तो शरीर मजबूत हुआ, दिमाग लगाते हैं कैसे निपटें, क्या करें, तो उससे मानसिक रूप से आदमी मजबूत हो जाता है। तो किताब में मैं थोड़ी देर बाद किताब बात करूंगा 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद आपसे मैं मॉडल गांव पे बात करूंगा। और उसके बाद आप सभी लोग कोई न कोई क्वेश्चन आप तैयार करिए, सबको क्वेश्चन पूछना। अभी होता क्वेश्चन पूछेंगे कहीं गलत हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी।
नहीं सर। बेइज्जती है, इज्जत तो बेइज्जती की बात। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। लोग कहते हैं सिली क्वेश्चन, सिली उली कुछ नहीं होता, क्वेश्चन केवल क्वेश्चन होता है। नो सिली और नो गुड और नो बैड, क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है, और ये आदत डालनी चाहिए, कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो हर आदमी आप क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, जो भी बातें हैं, जो भी आपके दिमाग में हो, इस धरती जो भी दिमाग में आए, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी फील्ड, एनी डोमेन। तो देखिए, ये जो किताब हमने लिखी है, इस किताब को मेरा लिखने का कारण केवल एक है कि हमारे देश में तीन कुर्सी सबसे मजबूत है, और उस तीनों कुर्सी पर कब्जा करने की हमारी सबकी चेष्टा होती है, होनी भी चाहिए। एवरीबॉडी ट्राई टू बी पीएम सीएम एंड डीएम, इसमें कोई बुरा नहीं है, सबको सपने देखना चाहिए और जाना चाहिए। और ये जो सपने नहीं देख रहा है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। यू मस्ट ड्रीम टू बी पीएम सीएम डीएम, एनीथिंग बेटर देन दैट आल्सो। तो देखिए, ना मैं पीएम हूं, ना मैं सीएम हूं, मैं डीएम हूं, मैं आईएएस अफसर हूं, तो मैं तो अपने वाले की बात करूंगा। डीएम एक ऐसी पोस्ट है जिसका एक ग्लैमर है, जिसका एक जलवा है, जिसकी एक पहचान है, और जिसका समाज में एक स्टेटस है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि हम अपने एक परिवार में 4 लोगों का, 6 लोगों का, 10 लोगों का एक जो छोटा सा परिवार होता है, उसमें भी हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी मुंह बना रहता है। लेकिन एक डीएम की एक जिम्मेदारी, वो जिले का मुखिया होता है, वो जिले का बाप है। और ये बाप की क्या जिम्मेदारी? लोग कहते हैं बॉस, बॉस वॉस कोई नहीं है, अंग्रेज बॉस थे, उस शब्द को हमें बदलना है। अब बॉस नहीं, हम लोग बाप है। क्या है? बाप। नेवर थिंक लाइक ए बॉस, थिंक लाइक ए फादर, बाप। तो जिला अधिकारी बॉस नहीं है, कहते रहे तो जिले के बॉस हैं, नहीं, वो जिले के बॉस नहीं है, वो जिले के बाप है। और बाप क्या करता है? सबकी भलाई करता है। He always do the welfare of everybody, all the persons, all the society. तो जिला अधिकारी हर आदमी की भलाई में लगा रहता है, और उसको प्रोजेक्ट और प्रोग्राम आते हैं। जैसे हमारे विभाग में, आप लोग कभी उत्तर प्रदेश सरकार को जानने की कोशिश किया है आपने? अगर आपसे कहा जाए कि बताइए आपको उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में पढ़ना है और जानना है, तो क्या करेंगे? आप बताओ लड़की, क्या नाम है आपका? इशिका सर। रितिका। इशिका। इशिका नाम भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रखते हैं। इशिका। एनीवे, तो इशिका आप कहाँ की रहने वाली हो? औरैया सर। औरैया। अगर मैं भी आपसे कहूँ कि जरा अपने जिले के बारे में मुझे बताओ, क्या है, कहाँ, तो अभी मैं आपको 5 मिनट दूंगा। अब आपको उस पर 5 मिनट के अंदर यहीं खड़े खड़े तुम्हारे पास एक मोबाइल है और उसमें वो है क्या, नेट है, तो कैसे कैसे बताओगे? हाँ, बिल्कुल। इंजीनियरिंग के छात्र, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, इनका जनरल नॉलेज और इनका कम्युनिकेशन दुनिया में सबसे खराब होता है। इसी वजह से ये सब कुछ जानते हुए अपने को ना प्रेजेंट कर पाते हैं, ना प्रस्तुत कर पाते हैं, और इनका प्रोग्रेस बहुत। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि जनरल नॉलेज को मजबूत करिए, और क्या करिए, कम्युनिकेशन को। बहुत सारे वीडियो हैं, कम्युनिकेशन कैसे बोला जाता है, कैसे बात किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल ओरेटर बनिए। मेक ए हैबिट टू लर्न द कम्युनिकेशन। दुनिया में सबसे पहली जब सुबह उठे तो कम्युनिकेशन, सुबह उठे अम्मा पानी दे दो, ये क्या है? कम्युनिकेशन। और जब तक सोने जाते हो तब तक कम्युनिकेशन करते हो, दिन भर कम्युनिकेशन। और जब तक धरती में नहीं सो जाओगे तब तक कम्युनिकेशन करो। जो चीज इतना इंपॉर्टेंट है, क्या कभी किसी ने पढ़ा? पढ़िए। ये हमारे ना गुरु जी ने बताया, ना यही दिक्कत है। तो कम्युनिकेशन पढ़िए, ऑनलाइन बहुत मटेरियल। देखिए, जिले की साइट है, तुरंत गूगल में अपना डाला तो तुरंत मिल जाएगा। पढ़िए उसको, अपने जिले के बारे में पढ़िए, नोट बनाइए। यूपी गवर्नमेंट क्या
उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश डालिए, अभी गूगल पे भी तुरंत आपको ले जाए उसी साइट पे, सरकारी साइट पे, जिसे कितनी नदी और कितने जिले, कौन डीएम, कौन, एवरी डिटेल यू विल गेट। लाइकवाइज एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज देयर साइट्स। भारत सरकार, तो मेरा ये अनुरोध है कि कम से कम इन 3 चीजों को पढ़ो और 4-4 पेज का नोट बनाओ। इंप्रूव योर नॉलेज। क्या अपने जिले के बारे में पढ़ो, अपने प्रदेश के बारे में पढ़ो और अपने देश के बारे में मोटा मोटा जानकारी होना चाहिए, जनरल नॉलेज। एक बात कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ी है। तो मैंने ये बीच में ये डाल दिया इसलिए क्योंकि वो मेरा दर्द झलकता है, मैंने देखा ना सबको, क्या क्यों लोग फेल होता है, इस पर भी हम लोग स्टडी करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन बहुत खराब था, हमने बहुत स्टडी किया, लगातार मैं कम्युनिकेशन पे स्टडी करता हूँ। और कम्युनिकेशन का मतलब जिसको 2 सेंटेंस बोलना आ जाए वही जानते हो। वह गया, रुको, वह चला, जो सेंटेंस, केवल 2 शब्द का सेंटेंस, जितने बड़े लोग हैं, जितने बढ़िया ओरेटर हैं, 2 से 3 शब्द वाला सेंटेंस बोलते हैं, गौर करिएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, पैसिव वॉइस नहीं, मैक्सिमम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यही 3-4 टिप्स है, ये सीखा। और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। गुरु जी ने एक बात नहीं बताया, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, डू यू नो दिस। मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, इसलिए नहीं कि मेरी तारीफ उनसे कोई, मैं आपको जस्ट इंस्पायर करने के लिए बात बता रहा हूँ। पढ़ने की कोई उम्र नहीं, और जिसने पढ़ना छोड़ दिया वहीं वो खत्म हो गया, चाहे वो आईएएस हो जाए चाहे कोई हो जाए, पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। बीटेक किया, एमटेक किया, अमेरिका में 1 साल रह करके एमपीए किया, ठीक, फिर लौट के आया, पीएचडी की, और इस समय मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिलीट, पीएचडी के बाद। और मैं अयोध्या यूनिवर्सिटी से डिलीट कर रहा हूँ। वो मेरा टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। कि कम्युनिकेशन अगर सरकार का अच्छा हो तो गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होता है और क्या उसका, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई कि जनरल नॉलेज आपका ठीक होना चाहिए और कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। अगर ये मेरी 2 बात आप मान लिए ना, अब वो 3 सेंटेंस मान लीजिए, क्या, जानने की जिज्ञासा और सीखने की इच्छा और पाने की जिद। हाँ वो इच्छा में पहुंच गए, कह रहे पाने की इच्छा, पाने की जिद। आंगन की तरह पैर रख दिया, तब तक नहीं उठाएंगे जब तक मिल नहीं जाएगा। तो आप अपना अगर जनरल नॉलेज इंप्रूव कर लें, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लें 2, और ये 3 वाला जो 3 ये बताया फार्मूला, ये कर लें और आज ही से इसको हैबिट बना लीजिए। चौथी बात ये मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो मैंने किताब लिखी है ना, जरा किताब दे देंगे। ये जो किताब लिखी है ये क्यों आपके लिए यूजफुल है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। सबके लिए यूजफुल है। गवर्नेंस की, जो गवर्नेंस होता है उसके क्या क्या स्टेजेस हैं। भारत सरकार पूरे देश पे राज करती है, गवर्नेंस करती है। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ गवर्नेंस करती है? स्टेट में। डीएम कहाँ गवर्नेंस करता है? जिले में, जिला। तो फर्क क्या है? बाउंड्री का फर्क है और वर्किंग का भी फर्क है और बहुत सारे डिफरेंस है। और गवर्नेंस की जो सबसे छोटी इकाई है वो है घर, क्या? फैमिली। द बेसिक यूनिट ऑफ द गवर्नेंस इज फैमिली। वहां भी गवर्नेंस होता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो आपके यहाँ भी तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, घर में एक मालिक होता है, पूरा कमाई भी रखता है, वही खर्च करता होता है, एक बाबूजी मालिक। तो वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ फाइनेंस, तो आपके घर में भी फाइनेंस। और हर घर में एक लीडर होता है कि हमारे गांव घर के मुखिया है, घर के मुखिया। तो जैसे पीएम-सीएम, वो आपके घर का पीएम-सीएम है। मतलब द बेसिक वो कन्वेंशनल है, वो लिखा है। फैमिली में अनकन्वेंशनल होता है, लिखा नहीं होता। बस सिंपल सी ये सिंपल डिफरेंस है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि इसको पढ़िएगा। तो इससे क्या होगा, आपका अपना, आपके फैमिली का गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो आपकी फैमिली धनी हो जाएगी, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा, हर आदमी धनी होगा, सीखने को मिलेगा कैसे कठिनाई होती है। और जिंदगी जीने में ट्रिक्स और टेक्निक्स की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की। तो ये पूरी किताब ही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से। अभी हम आपसे कहा 1 लोटा पानी बढ़ा दो, लोटा 1 बाल्टी पानी दे दो, तो नहीं दे पाओगे। हमने एज ए कलेक्टर
1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा दिया। धरती में वाटर टेबल होता है नहीं होता है? कुएं में जब आप रस्सी डालो क्या, तो बरसात में अगर वो 7 मीटर पे होगा तो गर्मी में वो कितना 10 मीटर पे होगा, 3 मीटर कहाँ चला जाता है? नीचे जाता, डाउन। उसको वाटर टेबल समझाने के लिए वाटर टेबल की जरूरत। वाटर टेबल हमने बांदा के वाटर टेबल को 1 मीटर 34 सेंटीमीटर, मोटा मोटा 1.5 मीटर बढ़ा दिया वाटर कंजर्वेशन से। अब हम इसकी बात बता नहीं सकते डिटेल। To know the detail of water conservation program done by me in Banda, you have to read this book and concerned chapter. पहला चैप्टर भी यही मेरा है। दूसरा, जब वोटिंग होता है तो सरकार चाहती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, ज्यादा से ज्यादा वोटर आए। जितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही हमारा लोकतंत्र की मजबूती की तरफ जाएगा, उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूती की तरफ से। सर आज की पोजीशन में तो सर रोक देते सर वोटिंग करने से। है? आज की पोजीशन में तो कहीं कहीं तो सर वोटिंग करने से रोक देते सर। अरे वो आज की पोजीशन में नहीं, वो हम आज ही पोजीशन की तो बात बता रहे हैं, हम 2019 की बात बता रहे हैं। उसका आपको तरीका मालूम होना चाहिए ना, कि रोकेंगे तो डंडा कर देंगे, और डंडा वाला तरीका अकल होना चाहिए ना। सर अभी रामपुर में नहीं हुआ था सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपके पास, देखिए चोर का काम चोरी करना है और शाह का काम उसको पकड़ना है, दोनों में कौन ज्यादा अकल लगा लेता है वही जीतता है। क्या आप समझिए बात को, उसका काम उसे करने दीजिए, आपका आप काम अपना करिए। आज के डेट में तो लोग ट्विटर पे इतना टाइप करते हैं कि 2 मिनट के अंदर यहाँ नहीं ग्लोबल हल्ला कट जाता है, वहां गड़बड़ हो रहा, मॉरल प्रेशर बनता है। इट मीन्स यू आर नॉट नोइंग हाउ टू फाइट, दैट इज द पॉइंट। जो आप कहना चाह रहे हो आपको आइडिया नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग। तो हमने गर्मी के चुनाव में 2019 में 10.5% वोटिंग बढ़ाया और उत्सव को माहौल खड़ा किया, उत्सव का हंसी खुशी। ऐसा लगता था कि होली दीपावली है, ऐसे खड़ा किया और किसी से कोई रुपया नहीं लिया। हमने जितने काम किए वो सब जितना और जिलाधिकारी को मिलता था उतना ही मुझे मिलता था। किसी ने को मीटर नहीं बढ़ाई, हमने बढ़ा दी। सबका 40 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाउन हुआ 2014 के मुकाबले, और हमारा 10.5 पर हमें इनाम भी मिला, दोनों को काम किया। प्लास्टिक पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के आया। किसी का सोच भी, हमने 2019 में 2018 से प्लास्टिक मुक्त बांदा का अभियान चलाते थे। कैसे चलाते थे, क्या करते थे, आप पढ़िएगा इस किताब में। और बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे न्यूज है, मेरे इस नाम से ढूंढोगे ना मेरी साइट को तो बहुत कुछ मिलेगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपकी अच्छी नियत है, अच्छी नीति है और अच्छी सोच है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोगों के मन में एक भावना है कि अच्छा काम, नया काम, बढ़िया काम करने के लिए पद चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए। कि हम कुछ नया काम करना चाहते हैं तो पद, पैसा, पावर चाहिए, तभी कुछ नया, अच्छा, बढ़िया इनोवेशन हो सकता है। क्या ये सही बात है? कितने लोग कह रहे हैं सही बात? हाथ उठाइए, शर्माइए मत। हाँ, आप लोग भी बोल रहे थे, बताइए। अच्छा काम, नया काम, बढ़िया काम करने के लिए पद, आईएएस होना चाहिए, डीएम होना चाहिए, पद, पैसा और पावर, ताकत। फांसी पे लटका देंगे, जेल भेज देंगे, डंडा पिटवा देंगे, फायरिंग करवा देंगे। ये पावर का जो निगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड भी है उसका। सही बात यह है, यही मिथ सबके दिमाग में है। जितने हाल में बैठे मोटा मोटा सबके दिमाग में यही बात है। हम गुरु जी को तो नहीं कह रहे, लेकिन आप सबके दिमाग में तो है, ये मेरे भी दिमाग में था। सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल ना पद चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए, केवल मेहनत चाहिए। नहीं, अच्छा काम, नया काम, बढ़िया काम करने के लिए एक अच्छी सोच चाहिए, एक अच्छी नीयत चाहिए, एक अच्छी नीयत, एक अच्छी नीति और एक अच्छा लगन चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये साहब कैसे?
मैं अपनी इस बात के तर्क में, हमारे देश का पीएम साहब कौन है? डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास। वो कहाँ पे है? सबसे ऊपर है। उनके पास कौन पैसा, कौन पद और कौन पावर था जो वहां तक पहुंच गए? लेकिन उनके पास एक नियत थी, एक सोच था, एक अच्छी विचारधारा थी, एक अच्छी भावना थी, एक अच्छी लगन थी। न पद था, न पैसा था, न पावर था, देखो कहाँ पहुंच गए। पहुंच गए नहीं पहुंच गए? दूसरा उदाहरण, बाबा रामदेव को जानते हो ना? बाबा रामदेव की कहानी आप पढ़िएगा, वो भी हरियाणा के बड़े ऐसे छोटे परिवार से आते। आज के डेट में उनकी बताते हैं कई हजार करोड़ की कंपनी है। हाँ, क्या है उनके अंदर? एक सोच, एक नियत, एक नीति सोच अच्छी थी, हो गया। तो पद, पैसा, पावर की जरूरत नहीं है अच्छा काम, बढ़िया काम, नया काम करने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने 2 उदाहरण देके अपनी बात को साबित किया। ठीक है कि नहीं ठीक है? हमने जो इस किताब में लिखा है, कई चैप्टर्स हैं। जैसे कोई सोच सकता, प्लास्टिक में हम 2018 से काम करते थे, बाकायदे ये डीएम बड़े बड़े लोगों से झोला लेते थे। क्या लेते थे? झोला। अब प्लास्टिक का बैग हटाना है तो रिप्लेसमेंट देना है ना, तो झोला लेते थे और खुद दुकान दुकान जाके बांटते थे, पेपर में छपवाते थे, एक माहौल क्रिएट करते थे कि भाई झोला लो, झोला प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट। खाना खाने में लिए मिट्टी के बर्तनों का जो है उपयोग किया, तो मिट्टी बर्तन ना मिले तो उसकी दुकान कहाँ पैदा होता है, कहाँ बनता है, बुलवाए, दुकान खुलवाए, खुद मिट्टी में खाने लगे। पेपर में जब डीएम मिट्टी में खा रहा तो लोगों में मतलब जस्ट टू बिहेवियर, खूब बढ़िया माहौल बना। लेकिन जो काम करते थे खुद पहले करते थे, ये नहीं कि हम मिट्टी बर्तन में ना खाएं। सबको पता था डीएम साहब मिट्टी बर्तन में खाते हैं, खाते हुए छपवाते थे फोटो। और मेरे किसी भी बैठक में कोई भी, सब कुल्हड़ में चाय, वो मिट्टी के बर्तन में वो क्या बोलते हैं, छोटा छोटा जो बनता है उसमें मिठाई वगैरह। तो हमने प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट दिया, यही अभियान चलाए, धीरे धीरे मन बदलने लगा। डंडा मार के कोई काम नहीं हो सकता, समझा के हो सकता। पावर ऑफ पनिशमेंट एंड पावर ऑफ प्यार। पावर ऑफ पनिशमेंट को कभी यूज नहीं करना चाहिए, ये उपयोगी नहीं है। पावर ऑफ प्यार से जो काम हो सकता है वो पावर ऑफ पनिशमेंट से नहीं हो सकता। हमें ये भी गलतफहमी है क्या कि पावर ऑफ पनिशमेंट, इनको ठोक दो, इनको पीट दो, इनको जेल भेज दो, ये लॉन्ग ये सस्टेनेबल इफर्ट नहीं है, ये नहीं ठीक है। मेरा तो यही विचारधारा, मेरा सोच यही है जो मैंने सीखा। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके लिए यही कामयाबी हो, सबके अपने अपने अनुभव है, मेरा अनुभव है। तो मैं अभी आपसे बता रहा था कि इसमें मैंने बहुत सारे चीजें लिखी हैं। माइल न्यूट्रिशन, माइल न्यूट्रिशन जानते हो? माइल न्यूट्रिशन का नाम सुना है? कुपोषण, वो हड्डी दिखता है और बड़ी दिक्कतें होती हैं। लोगों के मन में यह है कि वो गरीबी के कारण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट वन रीजन अमंग मेनी इज द पुअर फैमिली, shortage of money, shortage of resources, that is one reason. But along with that there are many other reasons which are not concerned, which are not related at all with the poor condition of the family. तो हमने माइल न्यूट्रिशन के काम किया। 48% माइल न्यूट्रिशन बच्चों में बांधा में। तो नीति आयोग ने हमारे उस काम को पेज नंबर 73 पे अपने रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में बेस्ट प्रैक्टिस में लिखा। तो मैं आप लोगों को ये मोटिवेट कर रहा था कि प्लीज रीड इट सो दैट यू कैन गेट, you can come to know the tricks and techniques how to manage the society, how to get the cheap and the best solutions of social problems. पानी की समस्या है, पानी की समस्या ग्लोबल समस्या है। अब केवल ये यूपी की या गांव या नहीं, ये ग्लोबल समस्या है। हाँ, बुंदेलखंड में थोड़ा ज्यादा है, बट इट इज ए ग्लोबल इशू नाउ। पानी की समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है, केवल एक आदमी के पास है, उस आदमी का नाम है जनता।
जब तक जनता नहीं चाहेगी, जब तक जनता नहीं इसमें इन्वॉल्व होगी, पानी की समस्या नहीं हल हो सकता। ये मेरा, और हमने वही किया, जनता को इन्वॉल्व किया, जनता पानी बचाने लगी, हो गया काम। 4 महीना जब फ्री पानी मिलता है बरसात में, तो उसी को बचाना है, धरती में ले जाकर के स्टोर कर लेना है, 8 महीना पीते। तो अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे किताब की, ये, और मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप पढ़िए और मुझे इसका कमेंट भेजिए, क्योंकि मुझे रोज कमेंट आते रहते हैं पूरे देश में इस किताब का। अच्छा, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, तो विद इन मंथ इंग्लिश वर्जन एज वेल एज गुजराती वर्जन विल बी इन द मार्केट. It is under the process of making, but Hindi version is best selling since in last 3 months. मॉडल गांव, अभी हमने जो ये पन्ना दिया, ठीक है, देखा आपने ये सब हमारे देश में। अब मैं थोड़ा सा बात मॉडल गांव की करूंगा, और उसके पहले मैं तीन अपने जिंदगी का बताना चाहता हूं। मैं जब कोई काम करता हूं, मैं जब कोई काम करता हूं तो मेरे पास 3 ट्रिक्स है जिस पर मेरी पीएचडी, डीलिट जो भी कहो सब कुछ है, और वो है बिना सर्टिफिकेट वाला प्रैक्टिस। पहला ट्रिक क्या मैं अप्लाई करता हूं, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। जब मैं कोई काम करता हूं तो उसके जितने स्टेक होल्डर हैं सबको मोटिवेट करके, इंस्पायर करके और सबको दौड़ाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मुझे पानी बचाना था, तो गांव वालों को मोटिवेट करना है कि अपने घर के, अपने छत का जो पानी है, जहां पानी गिरता है, एक 1 बाई 1, ठीक है, तो गड्ढा खोद लो, पानी धरती में, ऊपर से छत का पानी, बढ़िया पानी आएगा, धरती में जाएगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, नो मनी। तो अब वहां जब हम गांव में जाते थे तो पूरा ऑफिस वाले, हमारे 5 ऑफिस इन्वॉल्व थे, 5 ऑफिस, 5 टाइप के, ठीक है, डीपीआरओ, तो हमारा भूमि संरक्षण, जिला कृषि अधिकारी, डीडीएजी, सीडीओ, सबको, इनको, और गांव के हर आदमी को इन्वॉल्व करते थे, नेता को इन्वॉल्व करते थे, पत्रकार को इन्वॉल्व करते थे। क्या मतलब, जितने भी लोग, पानी बचाना सबका धर्म है, कर्म है, तो मैं सबको इन्वॉल्व करता था, जिससे सब लोग इसको अपना समझें और सब लोग मिलके काम करें। ये कला मेरे अंदर है, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टू टेक देयर प्रोएक्टिव सपोर्ट टू गेट द सिनर्जी इफेक्ट। ये पहला ट्रिक है, इसको मैंने इस किताब में लिखा है। दूसरा है नो कास्ट एंड लो कास्ट एक्टिविटीज एंड एक्शन। इसका क्या मतलब है, अगर हमें कह दें कि हमें प्रोजेक्ट चलाना है वाटर कंजर्वेशन का, 5 करोड़ का फंड दे दो, देगा कोई? नहीं देगा, तो नहीं देगा तो वाटर कंजर्वेशन नहीं होगा। अभी यही तो बताया, पद पैसा की जरूरत नहीं, अच्छे सोच की जरूरत है, मेरी सोच थी। तो हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं जिसमें या तो पैसा लगे मत, और लगे तो कम लगे, 0 के बराबर लगे। जैसे मुझे, अगर मैं यही गांव वाला जो उदाहरण दिया, इसको मैं जब बैठक करने जाता था तो हम कैसे बैठक करते थे, हमारे पास एसी रूम था, कलेक्टर का मीटिंग हॉल, हम उसमें बैठक नहीं करते। हमने कहा जो गांव का सबसे बड़ा तालाब हो, और उस तालाब के चारों तरफ भीटा बोलते हैं, यहाँ की जो भी बंधा बोलते हैं, भीटा बोलते हैं, उस पर बढ़िया बढ़िया बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ होते हैं। हमने कहा उस तालाब के किनारे जो सबसे मोटा बड़ा हरा पेड़ हो, उसके नीचे जमीन पे दरी बिछाओ और वहीं बैठक हो, और गांव में घड़े का पानी लाओ, और वहां गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऑर्गेनिक टाइप का। तो हमने क्या किया, गए बढ़िया नेचुरल हवा में, नदी के किनारे बैठे, जमीन पे, नो माइक, नो फूल, नो टेंट, नथिंग, खर्चा 0 बटा सन्नाटा हो गया, मिनिमाइज कर दिया, और जाकर के जमीन पे बैठते थे, गांव के घड़े का नेचुरल वाटर पीते थे, और वहां का गुड़ नरेनी का वहां मंगा करके, वो सबको पता था डीएम साहब को नरेनी का ऑर्गेनिक गुड़ खाना पसंद करते, घड़े का पानी कुल्हड़ में, और दरी पे बैठेंगे। हमने वहां ट्रेडिशन बना दी। तो जो खर्चा आता 2000 टेंट में, 3000 वो हमें माला पहनाने में और माइक में, मेरा इतना लाउड आवाज है तो कौन नहीं सुनेगा भाई। तो हमने खर्चा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो मेरा दूसरा ट्रिक्स है क्या है,
नो कास्ट लो कास्ट एक्शन एंड एक्टिविटी आई अडॉप्ट। ठीक, समझ में आ गई बात? पहला क्या बताया था? इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, नोट कर लो। इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इज फर्स्ट ट्रिक्स। सेकेंड इज adopting actions and activities involving no caste or low caste। अब हम पेड़ के नीचे बैठ गए तो हम डीएम नहीं है। लोग सोचते हैं हम डीएम का दर, अरे वही मेरी शान है। हमने देश की लड़ाई कैसे लड़ी? ऐसे लड़ी है। उसी ताकत ने अंग्रेजों को खदेड़ा और हम उसी के ताकत से इस देश की हर समस्या को हल कर देंगे। उसमें वो ताकत है जमीन पे बैठ कर, जिसको हमने छोड़ दिया है अपने नाज और घमंड में, नक्शेबाजी में। तीसरा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है जो मैं अप्लाई करता हूं। क्या? कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, फंड्स एंड नॉलेज। तीसरा ट्रिक्स में, जैसे मान लीजिए मुझे एक इवेंट करना था, अरहर सम्मेलन, हमारे वहाँ अरहर बहुत होता था, तो वहां पे एक कालिंजर बहुत बड़ा फोर्ट है जिसको अजय कालिंजर फोर्ट पढ़िएगा, मौका मिलेगा जाइएगा, बहुत फेमस जगह है। तो हमने वहां 5 पद्मश्री बुलाए, 30-35 जिलों के सबसे अच्छे किसान बुलाए और सबको बुला करके मैंने एक इवेंट किया कि अरहर की जो क्वालिटी है बांदा की वो बहुत अच्छी है, उसकी मार्केट में तैयार कर रहा था। मेरा वो प्रचार करने का एक देसी देहाती तरीका था। तो क्या एक विभाग से कह दिया टेंट ले आओ, तो उसमें 20,000 में टेंट। एक विभाग से कहा गाड़ी दे दो, जैसे हमारे कृषि विभाग के 6 विभाग थे, और मेडिकल का कैंप लगा दिया। तो ऐसे जो 10-12 हमारे विभाग होते हैं, यूपी में 80 विभाग हैं, तो उस पार्टिकुलर काम के लिए जो 10-12 विभाग इन्वॉल्व थे, तो किसी कहा खाने की व्यवस्था कर दो, किसी कह दिया गाड़ी की व्यवस्था कर दो, किसी कहा टेंट की व्यवस्था कर दो। मतलब इस तरह से जो एक एक को बांट दिया। अब सब विभाग में छोटा छोटा था, सबने कर दिया और कन्वर्जेंस हो गया हमारा काम। अब मान लीजिए उसमें हम 25 लाख मेरा खर्च आया, तो एक विभाग के पास ना 25 लाख है और ना होगा। तो कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल फंड्स रिसोर्सेज, जो अवेलेबल है उसी से मैनेज करना, ये मेरा तीसरा ट्रिक्स। ठीक है, ये इसी से मैं पूरे गवर्नेंस को करता हूँ, वो मुझे हर जगह सफलता मिलती है। तो जो मैं गांव की बात कर रहा था, अगर आज के डेट में मैं अब आ रहा हूँ मॉडल गांव पे, और ये 10 मिनट में आई फिनिश, देन आई टेक अप योर क्वेश्चन। हमारे गांव में अगर बात करते हैं कि हम देहात में कितने लोग रहते हैं, कितने परसेंट कहते हैं, 60%, 65%, 70%, यही कहा जाता है। आंकड़ों के हिसाब से बोलते हैं कि 65 से 70 के बीच रूरल पॉपुलेशन है, अराउंड 30% अर्बन पॉपुलेशन। मेरा ये कहना है कि 95% से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल है। कैसे? मैं ये बात कह रहा हूं कि रूरल बेस्ड या रूरल डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो 95% से ज्यादा है। 65 तो आपका ये हो गया। और जो शहर में आए हैं नौकरी ढूंढने में, लखनऊ रहता हूँ, रहने वाला बस्ती का हूँ, मेरा सब कुछ तो बस्ती में है, खेत है, तो मैं तो अपने को क्या शहरी मानूंगा, देहाती? हमें तो गिनोगे आप शहरी में, बट आई एम माई बेस इज देहाती, स्टिल आई एम देहाती। तो ऐसे बहुत सारे करीब 25 से 30% आबादी जो माइग्रेट कर गई है, कहां से? देहात से शहर में नौकरी करने, मजदूरी करने, दुकान खोलने, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस they have migrated from rural area to urban area, but उनका सब कुछ चल कहां से रहा है? देहात से। ये मेरा एक रीजन है। दूसरा रीजन, जो शहर के चारों तरफ, शहर को आटा, दाल, चावल, दूध, सब्जी कहां से आता है? अगल बगल के गांव से। तो वो भी गांव देहात पे डिपेंडेंट है। और ऐसे बड़े आदमी जिसकी इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका सबका फार्म हाउस है। क्या है उनका? और वो सप्ताह में एक दिन बच्चों सहित फार्म हाउस में ही रहते हैं। तो सबसे बड़े किसान हैं। तो मेरा इन सब तर्कों के आधार पे ये कहना है कि ये हमारी जो कंट्री है, ये मोर देन 95% रूरल है। मैं इसको इस तरह से समझता हूँ और यही मेरे दिमाग में बैठा हुआ है।
तो अगर इस देश का विकास करना है तो हमें 95% को विकसित करना होगा, तभी विकसित देश हम बन पाएंगे। और गांव का विकास कोई नई बात नहीं है। गांव के विकास की परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी, बताएगा कोई? महात्मा गांधी जी ने। क्या कहा है? गांव स्वराज, रिपब्लिक विलेज। आप लोगों की जनरल नॉलेज बहुत खराब है भाई, क्या करोगे? है ना, आप गांव के रह गए हैं ना शहर के रह गए हैं, बिल्कुल त्रिशंकु की तरह बीच में क्या है? रिपब्लिक विलेज की जो परिकल्पना है वो महात्मा गांधी जी ने की थी कि जब तक गांव इस देश का संपन्न नहीं होगा तो वो गांव के विकास पे बहुत जोर देते थे। आप लोग रिपब्लिक विलेज महात्मा गांधी डाल करके पढ़ लीजिएगा और 15 का नोट लिख लीजिएगा, पढ़िए। आज तक नहीं पढ़े हैं, आज से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विजन था महात्मा गांधी। ठीक है। और वो 1945 में नेहरू जी को एक चिट्ठी लिखे थे, उसमें पूरी कहानी लिखे थे कि ये होना चाहिए गांव में, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। गांधी जी बहुत परेशान थे गांव के विकास को लेके, तो वो जानते थे जब तक गांव विकसित नहीं होगा ये इंडिया विकसित नहीं हो सकता। तो वो उनका जो दर्द था रिपब्लिक विलेज का, पढ़िएगा। ठीक है, वो क्या चाहते थे, कैसे चाहते थे, लिखिए और लिखकर पढ़ने की कोशिश करिए। जब हम लिखते हैं ना तो ये हाथ से ये यहाँ से वो जाता है दिमाग में, दिमाग को हानि करता है, ये हमने छोड़ दिया। लिख के पढ़ना बहुत अच्छा होता है, लिख के पढ़िए। आज भी हम लिख के पढ़ते हैं, कुछ भी नोटिंग होती है मैं कंप्यूटर पे टाइप नहीं करता, पहले हाथ से लिखता हूँ रफ पे, फिर अपने स्टेनो दे देता हूँ टू टाइप। स्टिल आई हैव दैट हैबिट, तो ये सबको करना चाहिए। तो ये जो रिपब्लिक विलेज का कॉन्सेप्ट था इसको पढ़ लीजिएगा, ये महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, मेरा है। एक बात। दूसरा ये है कि अभी एक मिसाइल मैन थे हमारे देश में, जानते हो नहीं जानते? उनको भी नहीं जानते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब जो मिसाइल मैन थे, हमारे राष्ट्रपति थे, दुनिया में नहीं। उन्होंने एक पूरा नाम की स्कीम चलाई। किस नाम की? पूरा लिखिए, PURA, ढूंढ लीजिएगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। उस पर एक किताब भी है, पढ़िएगा। उसका भी वही है, कैसे देहात को आगे बढ़ाया जाए, कैसे गांव को संपन्न किया जाए, गांव को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, हाउ टू मेक इंडिपेंडेंट। तो ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का और जो गांधी जी का सपना है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, मॉडल गांव के प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के सहारे लोगों को समझा करके और कहते हैं कि गांव का विकास होना चाहिए। ठीक है, गांव का विकास देखो जितना, ये नहीं हम कह रहे कि गांव का विकास नहीं हुआ। We have seen too much development in our villages, but what is expected that has not happened. वो नहीं हुआ जो हम चाहते हैं। गांव में विकास हुआ। अब बात आती है कि जब आप गांव का विकास हुआ क्यों नहीं, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, जब वो मर्ज पता लगेगा तभी तो यू विल प्रोवाइड द प्रिस्क्रिप्शन, एप्रोप्रिएट मेडिसिन। देखो हम लोगों की जो एनालिसिस है, जब हम बांदा में कलेक्टर थे तो हमने ये चीज वहां से प्रयोग किया। हम कलेक्टरी नहीं कर रहे थे कि बैठे हम बिल्कुल देहाती टाइप, हम कहते थे हम किसान के बेटे हैं, हम देहाती कलेक्टर हैं। चदरा, आप मेरा फोटो को देखोगे तो मेरे इसमें भी देखो, ये देखो मोफलर टांगे हैं, देखो टांगे नहीं टांगे। ये मैं मोफलर क्यों टांगता था, चदरा टांगे रहता था गर्मियों में, देहाती तरीके से रहता। क्यों? मैं टाई सूट पहनता था, ऐसा नहीं है, मैं टाई सूट पहनता था, लेकिन मैं अपने को देहाती लुक प्रस्तुत करता था कि मैं देहात का हूँ, मैं आपके बीच का हूँ, मैं अंग्रेज कलेक्टर नहीं हूँ, मैं देहाती कलेक्टर हूँ, जिससे जनता हमसे मिलकर अपनी बात तो करे। अगर वो हमें जाने की अरे डर भय, उसके मन में कलेक्टर के प्रति डर भय रहेगा तो अपनी बात क्या करेगा, और जब तक वो अपना बात नहीं बताएगा मैं हल क्या करूंगा, तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। मेरी किस बात की दुकान है कि जनता अपनी समस्या बताए और मैं उसे हल कर दूं, और जनता हमसे डर रही है, मैं अपनी बात नहीं बताएगी तो मैं हल नहीं करूंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये मेरी सोच थी। तो मैं मोफलर टांग लेता था, गर्मी में चदरा लटका लेता था। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव ए देहाती लुक।
in my attire, so that people should connect with me, people should communicate with me, and people should cooperate with me. 3C: connect, communicate and cooperate. संपर्क, संवाद, सहयोग। हम हर चीज में इनोवेशन करते हैं। देखो यहाँ 3C निकाल लिया फार्मूला। कनेक्ट करो जनता से, भाषा के द्वारा, अटायर के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, और फिर उससे कम्युनिकेशन स्थापित करो, संवाद, उसके मन से हिच निकालो, और फिर आपस में एक दूसरे का कोऑपरेट करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि डीएम ही कुछ सब कुछ दे सकता है। जनता हमें कितना देती है, प्यार देती है। हमने कहा पानी बचाओ, उसने पानी बचा दिया तो हमारी बात माना तो हमें दिया ना है। हमने कहा नसबंदी करा लो, 3 बच्चा हो गया, अगर उसने नसबंदी करा लिया तो हमारी बात माना तो हमें दिया ना है। तो मैं बात यहाँ कर रहा था कि गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, इसके कारण क्या है। इसके 3 कारण जो हमारे समझ में आए। पहली बात है कि अगर किसी गांव वाले से पूछो विकास क्या है, तो उसे विकास के बारे में पता, अच्छे को पता नहीं है व्हाट इज डेवलपमेंट। एक बात, पहला कारण, गांव वाले को विकास नहीं पता, विकास की परिभाषा नहीं पता, पता है तो अधूरा पता, पूरा नहीं पता या ठीक प्रकार से नहीं पता, लूला लंगड़ा अधूरा पता है। दूसरा कारण क्या है, अगर उससे पूछो कि गांव में विकास क्या क्या विकास होना चाहिए, तो कहेगा साहब वो नाली, खड़ंजा, वो स्कूल और राशन की दुकान, ऐसे 5, 6, 10 बताता है। पानी बचाना वो विकास नहीं मानता, गांव को ग्रीनरी में कन्वर्ट कर देना वो विकास नहीं मानता, गांव में झगड़ा ना हो, विवाद रहित गांव को वो विकास नहीं मानता। अन्ना हजारे का गांव मॉडल गांव है, रालेगांव सिद्धि नाम है। उन्होंने पहला काम किया कि उसको विवाद रहित गांव बना दिया, जितने गांव में मुकदमा थे समझा बुझा के, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, उससे 2-4 पॉइंट मारो। हम लोगों ने अपने इसमें 25 पॉइंट दिए, देखिए उसमें लिखा है, देखिए 25 पॉइंट लिखा है, ये जो पर्चा दिया देखिए 25 पॉइंट लिखे हैं, लिखा है। तो उसको डेवलपमेंट इंडिकेटर के वर्ड ऑल इज नॉट नोन टू देम, ओनली दे नो अ फ्यू। तो दूसरा कारण यह है कि उसे पूरे डेवलपमेंट के एजेंडा नहीं पता। और तीसरा जो मुख्य कारण है गांव के विकास का, कि देयर इज नो डिमांड फॉर द डेवलपमेंट फ्रॉम द विलेजर्स। कभी आपने ये सुना कि गांव वाले धरना बैठे कि जब तक हमारे गांव का विकास नहीं हो जाएगा हम धरने से नहीं, सुना नहीं, उनकी गांव की मांग ही नहीं है। ये तीसरा कारण। तो ना विकास पता नंबर 1, ना विकास के सारे मुद्दे पता नंबर 2, और देयर इज नो डिमांड ऑफ डेवलपमेंट नंबर 3। कहीं उस गांव का विकास होगा, ना नाम पता ना गांव पता, तो कहीं कुछ होगा नहीं। इन्हीं तीनों चीज की दवा हम लोग इस मॉडल गांव का जो ये कॉन्सेप्ट है उससे करते हैं, ठीक। तो हम लोग ये जो विलेज मैनिफेस्टो का एक कॉन्सेप्ट लेके आए, विलेज मैनिफेस्टो। आप लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो तो सुना होगा, तो हम लोगों ने विलेज मैनिफेस्टो का कॉन्सेप्ट लेके आए। और ये मॉडल गांव की साइट पे जाओगे तो आप अपना ऊपर फोटो अपलोड कर दो, मोबाइल और डाटा भर दो 3-4 तो आपका इसे बना के सॉफ्ट कॉपी दे देगा। अभी कोई बना करके मुझे ही दिखाएगा, बनाइए एक आध आदमी, तो एक जाइए देखिए मॉडल गांव साइट पे, और आप इसको, आपका सबका फोटो बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये फैसिलिटी क्रिएट की टेक्नोलॉजी के सहारे, कि जब प्रधानी का चुनाव होता तो क्या होता है, ऐसा एक पन्ना होता है, उस पर वो फोटो लगा के इसे प्रचार करता है। किस बात का प्रचार करता है, कि हमें वोट जब हम प्रधान बनेंगे, और ये हमारा किसका वोटिंग करवाते हैं हम लोग, विकास का। ये चुनाव किसका होगा, विकास का, ये पर्चा है, विकास का चुनाव होगा और जीतेगा कौन, विकास। इससे हम पूरे गांव को इन्वॉल्व करते हैं, सारे स्टेक होल्डर को इससे मोटिवेट करते हैं, उन्हें विकास बताते हैं, विकास के वो 2500 पॉइंट बताते हैं, और डिमांड फॉर डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं। जो बेसिक्स है ये सीखा हमने कहां से, वहीं बांदा से। बांदा में हमने जब पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ाया, तो यू विल नॉट इमेजिन वहां का क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया। ये पब्लिक डेटा है। इसका क्या मतलब, जिस खेत में मान लो ये खेत वहां 100 किलो पैदा हो रहा था, तो कितना पैदा होने लगा, 118।
18 किलो, मैं समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, 118 किलो पैदा मिलेगा। 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा देना आसान है, और वो केवल पानी की वजह से हुआ। जैसे पानी का तल ऊपर आता जाएगा, क्या बहुत सारी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, और क्रॉप का जो नीचे से ताकत मिलती है वो बढ़ जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये बात हमने, ये जो हम मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो बादा में हमने ये सब प्रयोग किए, उसी का सम टोटल है, वो पूरे एक जिले में हमने किया, जिसको कि पूरा इस किताब में मैंने लिखा है। उसी को ऑनलाइन पूरे प्रदेश में हम लोग इसको चला रहे हैं ऑनलाइन। तो इस मॉडल को पढ़िए और इसको समझिए, और आप इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में करिए। क्या मॉडल गांव को एक प्रोजेक्ट के रूप में करिए। आप अगर किसी गांव के रहने वाले हैं तो मॉडल गांव को पढ़ो और अपने गांव में लागू करो। आपको कोई दिक्कत आएगी तो मॉडल गांव की ऑफिस है, फोन नंबर है, ईमेल है, आप उनसे बात करेंगे, वो हैंड होल्डिंग करेगा। समझ गए कि नहीं? तो क्या होगा, और मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले आदमी एक नौकरी कर लेता था, जैसे हम इंजीनियर हो गए तो हमारी जिंदगी इंजीनियरिंग से चल गया। अब रिसर्च ये कहती है, बहुत सारे सर पेपर आए हैं, एटलीस्ट 3 डोमेन नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू लिव ए डिग्निफाइड कंप्लीट लाइफ। मतलब अगर अब इंजीनियर अकेले से नहीं चलेगा, 2-3 चीज और सीखो, 2-3 काम और आना चाहिए। ये मैंने पेपर में, रिसर्च पेपर में पढ़ा। पहले क्या होता था कि आपने एक धंधा कर लिया, वो चल रहा है 30 साल तक। आज तो सुबह धंधा किए हो, अगले दिनों आपका धंधा बंद हो जाएगा, चार्ट ऐसा चल रहा है। फास्ट चेंजिंग लाइफ, फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो अब आपको 3 डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए अभी आप लोगों के से बात करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आप लोग 30-40 साल बैक में जी रहे हो, ना आपका जनरल नॉलेज ठीक, ना कम्युनिकेशन ठीक, और ना जानने की जिज्ञासा ठीक, ना पढ़ने की ललक है। ये सब गड़बड़ है, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि ये मॉडल गांव की सारी जानकारी इस साइट में दिया है, देखा ना, www.modelgaon.org है कि नहीं है? खोल के देख लिया। और आप इसको पढ़िए, इसका नोट बनाइए, पहले इसकी थ्योरी समझिए, इस पर मोबाइल ईमेल दिए हैं, आप उनसे बात करिए, अपने गांव को मॉडल गांव बनाइए। अब कहो साहब हमारे पास गांव तो नहीं है, तो आपके मामा का गांव होगा, आपके नाना का गांव होगा, आप बचपने में जहां भी बिताए हो जिस रिश्तेदारी में, उस गांव को मॉडल गांव बनाइए। उससे क्या फायदा होगा? आप ट्रिक्स एंड टेक्निक सीखोगे। कौन ट्रिक्स टेक्निक्स? जो मेरे अंदर, और वही आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। थियरेटिकल नॉलेज की कभी वैल्यू हुआ करती थी, आज के डेट में प्रैक्टिकल नॉलेज की वैल्यू बढ़ गई है। आप 95 और पीएचडी लिए घूम रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो कोई आपको ले नहीं रहा, ये कड़वा सच। अगर आपको ले लेगा और आप उसको पीएचडी तो जान के वो लेगा, 1-2 महीना से आपके काम कराएगा, आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज is must along with the theoretical knowledge, and I say on my personal experience, practical knowledge is more important than theoretical knowledge in current situation when competition is tough, when supply of human resource is much more than the required. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक रामचरण वर्मा नाम है, रामचरण बनाना मैन, आप इसको भी पढ़िएगा। ह्यूज कछाड़ फेल, कछाड़ फेल है रामचरण वर्मा, दौलतपुर गांव का नाम है, बाराबंकी के रहने वाले हैं, पद्मश्री है, और खेती केला पे इनका बहुत बड़ा रिसर्च है कछाड़ फेल का। पूरे इंडिया के पूरे, इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, और कोई पीएचडी डी.लिट ये सब, जिसको भी आलू और बनाना पे कुछ काम करना होता है इनसे आग सीखते हैं। ये तो पीएचडी नहीं है, पीएचडी वाला इनके यहाँ क्यों आता है? IIM का एग्री बिजनेस वाला इनसे सीखने क्यों आता है? अभी हमने आपको एक स्टेटमेंट दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन थियरेटिकल नॉलेज इन करंट सिचुएशन, यही तो मेरा स्टेटमेंट था। उसी के सपोर्ट में मैं ये बात कह रहा हूँ। रीड मिस्टर रामचरण वर्मा, कछाड़। और मैं आपको बता दूं, हार्वर्ड के जो वर्तमान में डीन है
वो इंडिया के ही, उनको भी पद्म श्री मिला, मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था, उस पर ये वो काम कर रहे हैं कि हम थियरी को तो मार्किंग करते हैं और जो प्रैक्टिकल रूप में सतत सीखते हैं उसकी मार्किंग नहीं करते हैं। तो इस पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि नहीं, हम सतत सीखते हैं, मरते दम तक सीखते हैं, तो केवल थियरी वाले का नंबर लेके हम इवैल्यूएशन और नौकरी नहीं देंगे, हम प्रैक्टिकल का भी नंबर जोड़ते हैं। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट उनका है। तो मुझे मोटा मोटा ये कहना था, मैंने सबसे पहले आपको कुछ डीएम, पीएम, सीएम, ट्रिक्स, टेक्निक्स, समाज के बारे में बात की। आपसे कुछ मैंने सेंटेंस मैं समअप कर रहा हूँ, क्या क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, इसको समझाया। मेरे जिंदगी के जो अपने 3 ट्रिक्स हैं जो मुझे सफलता दिलाते हैं, क्या इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स, नो कास्ट, लो कास्ट, एंड थर्ड वन इज द कन्वर्जेंस। ये जो मेरा फार्मूला है उस पर बात की आपसे। एक त्रिदेव का फार्मूला दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जानने की जिज्ञासा और सीखने की ललक और पाने की जिद। जैसे बच्चे नहीं होते हैं, ये खिलौना नहीं लाएंगे तो पिताजी पूरा घर को रुला देता है, वो हट की जरूरत है। फिर मैंने आपसे बात किया गांव पे, मॉडल गांव पे। मेरी अपनी सोच है, आई डू, एक चीज और नोट कर लीजिए, नेवर डू सेम थिंग इन द सेम मैनर, डू द सेम थिंग ऑलवेज डिफरेंटली, डू द सेम थिंग ऑलवेज। अगर इस रास्ते चलेगा, मैं इधर से आया ना तब कि मैं इधर से जाऊंगा, इधर से जाना ही नहीं है। जिस रास्ते पर एक बार चल दिया उस रास्ते पर कभी मत चलो, दूसरे रास्ते की रिसर्च करो, सर्च करो। इन नटसेल, इन वन सेंटेंस, डू द सेम थिंग डिफरेंटली। और इसी को कहते हैं इनोवेटिव माइंड, इनोवेटिव पर्सनालिटी, इनिशिएटिव। और यही ऊंचाई पे ले जाता है, क्योंकि इसका युग चल रहा। पहले स्टैटिक युग था, आज के 30 साल पहले स्टैटिक युग था। क्या एक चीज कोई सीख लिया उसी को रिपीट कर रहे हो 30 साल तक जिंदगी कट गई। अब डायनेमिक युग आ गया है, स्टैटिक युग चला गया, उसका जमा, हर चीज का जमाना होता है। स्टैटिक युग चला गया, अब क्या हो गया, डायनेमिक युग है। सुबह जो है दोपहर में नहीं, दोपहर है शाम नहीं, कल सुबह क्या आएगा भगवान ही मालिक है। तो you people are intelligent, engineers are really intelligent, logical in thinking, in processing, but they are very poor in general knowledge and communication. That is very harmful with you people. तो मैं आपको ये जोड़ कर रहा था कि आप लोग कम्युनिकेशन, डू यू बिलीव, मैं पर डे सुबह जब घूमता हूँ क्या, तो मैं किसी ना किसी कम्युनिकेशन सुनता हूँ, किसी का। बहुत सारे संदीप माहेश्वरी ऐसे आप डाल दो ना, गुड टेक्निक्स, गुड, बहुत सारे। आज के देश में तो दुनिया बिल्कुल उसी मोबाइल में, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज हैं। तो हम वो खराब था, ये निगेटिव एटीट्यूड वाली बातें देखते हैं। तो एवरीडे, और जनरल नॉलेज कैसे बढ़ेगा, आप अपने जिले की साइट पढ़ लो, पूरे यूपी की साइट पढ़ के यूपी को जानने की कोशिश करो, इंडिया को जानने की कोशिश करो, अपने गांव को मॉडल गांव बनाओ। अभी इसके लिए ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये पढ़ाई के पैरेलल में ये सब सीखना। और मेरा तो ये मानना है कि आज के डेट में हर इंजीनियर को उसकी जो हॉबी है, हर व्यक्ति के अंदर एक हॉबी है। जैसे कोई गाने की हॉबी है, कोई नाचने की हॉबी है, कोई किसी में, मतलब जो आपकी हॉबी है उस हॉबी को गूगल पे जा करके उस पर खूब पढ़ो, खूब वीडियो देखो, उसको पनपा दो। पहले आईएएस बन के लोग नाम कमाता था, आज के डेट में सारा प्रोफेशन बन के नाम कमा रहा है। दुनिया बदल गई है। अगर आपको गाने में अच्छा हो गया ना तो लोग पीछे पीछे घूमेंगे। अगर आपकी वो हॉबी है, आप इंजॉय कर रहे हो तो उसको बढ़ाओ ना, आप इंजीनियरिंग करते रहो। लेकिन जो आपके अंदर जोश है, जो आपकी हॉबी है, अपने हॉबी को नर्चर करो पैरेलल में। आपको ढोलक बजाना आता है, बजाओ। आपको हारमोनियम बजाना, आपको गाना आता, आपको मान लो पेंटिंग आती है, जो भी आपके अंदर कला, कोई कला आज के डेट में बुरी नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। आप उसको इतना ऊंचाई दे दो अपने उस हॉबी को ना, ये दुनिया आपके पीछे घूमने लगे। तो ये आप अपनी पढ़ाई करिए,
एक डिग्री ये लेके जाइए और दूसरी डिग्री आप लीजिए, किसके मार्फत? अपने हॉबी के मार्फत। थैंक यू। भाई हाँ, वो बहुत परेशान है। हाँ बताओ, हाँ क्या क्वेश्चन है आपके? सर कोई बड़ी बात नहीं है सर, सीधी बात है। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूं किसी भी विलेज का, या सिंपल अपने एक वृंदावन शहर है सर, है ना सर। सर पहली बात तो अपने यहाँ सर एजुकेशन ही बहुत लेस है। अगर हम किसी भी, क्योंकि सर कोई भी मिडिल क्लास आदमी है, नीचे आदमी है, तो सर वो किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं सकता सर इंग्लिश मीडियम में। वो क्या प्रेफर करता है? इंग्लिश मीडियम, वो सरकारी स्कूल, है ना सर। सर अगर सरकारी स्कूल हम प्रेफर कर रहे हैं, इंसान अगर क्वेश्चन पूछो, तुम्हारा भाव समझिए, क्वेश्चन क्या है? सर मतलब मेरे को कुछ बातें आपसे करनी है उस चीज में, तो अरे जब बातें तो तुम्हारा लखनऊ में तुम्हारा बात करने का टाइम नहीं है, तुम क्वेश्चन पूछो भी। सर क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो हमारे यहाँ सर पढ़ाना जो है, बैठ जाइए, मैं समझ गया, बैठो बैठो। पढ़ाई बैठो। आज के डेट में पढ़ाई करना सबसे आसान है। किसी स्कूल में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, आप यहीं से हार्वर्ड की पढ़ाई फ्री आप कास्ट कर सकते हैं, सब गूगल पे। पहले ये था, आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज जैसे हैं कि फ्री आप कास्ट जितना सर्टिफिकेट लेना चाहो लो। किसी स्कूल में जाने की ना उसकी मान्यता है, अपने भारत सरकार ने भी तो बनाया हुआ है। तो वो जो आप जमाना, वो मेरे जमाने की बात कर रहे थे। आज के जमाने में बहुत चीजें, मैं अभी परसों एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी ने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आईएएस की 20 कोचिंग को एक जगह उसने बताया कि ये कोचिंग है, ये कॉन्टेक्ट है, इससे एडमिशन होता है, ये फ्री कोचिंग है। आपको आईएएस की तैयारी करनी है, 20 फ्री कोचिंग है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए वो कहाँ है, और सब ऑनलाइन है। तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, वो जमाना हमारा वाला था। आज के जमाने में ऑनलाइन बहुत सारी चीजें फ्री हैं और क्वालिटी की फ्री हैं, आप उसको अवेल करिए। हाँ सर आपने इस पे लिखा है एक में कि बिजली सोलर वाला गाँव, बिजली सोलर वाला गाँव। हाँ सर अभी आपने बताया कि आपके जो भी वो रहता है उसको आप कहते हैं लो कॉस्ट लो कॉस्ट। सर सोलर लगाने में हमेशा काफी कॉस्ट आती है, हम अपने घर में भी लगाएंगे तो एक ऐसा है, मैं सोलर विभाग में 10 साल पहले रह चुका हूँ, सचिव नेडा, ठीक है। तब बिजली की कास्ट आती थी 10 रुपया यूनिट। क्या रुपया आती थी? 10 रुपया यूनिट। और आज कास्ट है 2 रुपया 2.5 रुपया यूनिट। वो धीरे धीरे जो बात आप कह रहे हो 10 साल पहले, जैसे जब मोबाइल आया था, पहली बार मैं बरेली में पोस्टेड था, तो एक मोबाइल आएगा, वो बात करोगे, चेहरा भी देखो तो लगता था क्या हुआ है, और 10 रुपया पर वो मिनट या जो भी था, ठीक। आज वो 10 पैसा सेकंड है। तो वो जो बात आप कह रहे हो, ये कभी महंगा था, आज के डेट में महंगा नहीं है। मैं आपको अपना उदाहरण, मैं जहाँ लखनऊ में रहता हूँ, तो मेरा बिल आता था 12,000 13,000, और हमने वो 4 लाख का वो लगवा लिया, क्या सोलर। अब मेरा बिल आता है, कभी आता नहीं है, कभी 2,000 3,000, अगले 3 साल में पूरा हो जाएगा। नाउ सोलर इज चीपर देन योर दिस। बस बात वही कि उसकी जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो बहुत महंगा है कि 4 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस आप उसको एक स्पेन में देखो ना, एक टाइम स्पेन में देखो बेटा ना। प्लानिंग कोई एक दिन के लिए नहीं होती है, यही तो आप गलत कर रहे हो। प्लानिंग एक दिन के वो शुरुआती दौर में, लेकिन एक चीज बताइए, जो एक ही बार तो आपका इंस्टॉलेशन चार्ज लगे, उसके बाद तो फ्री आ रहा है ना। हमने 4 लाख लगा दिया और मजा रोज ले रहे हैं, हर महीने बिल काट दे रहा है इससे। सर ये चीज हम तो समझ गए, मगर गाँव के लोग तो नहीं समझाएंगे। यही इसीलिए तो आप बीटेक है, वो गाँव वाला है, हम आपको क्या समझा रहे हैं। मैं कोई बहुत गोरा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कॉन्वेंट और टाई वाला पढ़ के आया हूँ। मैं तो देहाती अपने को बताता हूँ, देहाती हूँ। मैंने तो बाधा जैसे बैकवर्ड को समझा करके उसे नचा दिया 20 लाख आदमी को, मेरे इशारे पे नाचता। तो आप आज मुझे हटे 2 साल हो गया, 2.5 साल बांधा से। आप किसी गली चौराहे पर जाकर खड़ा होकर पूछ लीजिए कि ये कलेक्टर आया था, तो वो मेरा ही नाम लेगा कि बहुत अच्छा आदमी था। आप लोगों के दिलों में घुसने की तो सोचो, आपके मन में वो बात तो आज आपके मन में था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तभी तो तुम यहाँ बैठे हो भैया मेरे। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मुझे लोगों के दिलों पे राज करना है। महात्मा गांधी कौन ताकतवर थे? उनके पास कौन सा लाउड स्पीकर था? उन्होंने अगर कह दिया तो हमारी माँ बहनों ने अपने सुहाग दे दिए थे। केवल बात की ही तो बात थी। वो ट्रस्ट तो पैदा करो जनता में। स्वार्थ अपना, दूसरा मर जाए हम जिंदा रहे, नाटक करोगे कौन पूछेगा? आपकी बात इसीलिए नहीं मान रहा, मेरा मानता है। चेंज योरसेल्फ, बिकम द, अडॉप्ट द हैबिट ऑफ महात्मा गांधी। रुक जाओ, तुम अभी बात करेंगे। हाँ
सर तुम कपड़ा उपड़ा ले लो, चलो मेरे साथ वहाँ आगरा नहीं देती होटल में रखना। सर गांव में सर अन्ना पशु जानवर की तो बहुत ज्यादा समस्या है सर, इससे रिलेटेड सर कुछ। हाँ देखो, अन्ना प्रथा की जानवर की समस्या है और सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, इसमें भी जनता के ही हाथ में है। जनता क्या करती है, हमने तो कभी नहीं सोचा था, हमने अपने बचपने में, हमने ये नहीं हुआ कि दूध के जमाने में जब तक भैंस और गाय दूध दे रही तब तक, और नहीं तो छोड़ देते हैं। ये प्रथा अन्ना चलता था बादा में, बुंदेलखंड में, क्योंकि तब वहां एक फसली, क्योंकि जब मैं गया तो वहां मैंने पहली बार अन्ना प्रथा सुना एज ए कलेक्टर, मैं पहली बार उस रीजन में गया। तो वहां क्या होता था, एक फसल होता था, दूसरा होता नहीं था, तो जानवर लेके छोड़ दिया, 6 महीने तक वो घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब वहां भी 2 फसली हो गई। तो भैया मेरे, अगर आप जानवर लिए हो तो क्यों, जब तक दूध दे रहा है तब तक तो बांधोगे और नहीं तो छोड़ देगे, ये तो बड़ी गलती बात है। ये जो स्वार्थ पैदा हो गया इसकी वजह से है। आप जानवर को, अब आप क्या करिए, केवल वो दूध से बेनिफिशियल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्या तो क्या आप जो है 3-4 जानवर या 2 जानवर, उससे गोबर गैस, तो आपकी बिजली की समस्या हल हो जाएगी। आजकल गोमूत्र, मैं खुद ही गोमूत्र पी रहा हूँ। क्या लोग कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्किन की प्रॉब्लम है। तो मुझे आयुर्वेद के डॉक्टर ने बताया कि घीर गाय का गोमूत्र मैं रेगुलर पी रहा हूँ, रोज पर डे पीता हूँ। अब वो जो मूत्र, मतलब उसका जो गोमूत्र है, वो भी आपको कमाई का जरिया बना। गोबर से आपका वर्मी कंपोस्ट बना, गैस बना, वो भी कमाई का। दूध, पहले केवल दूध ही कमाई का जरिया था, अब हम उसके गोबर से और गोमूत्र से, दोनों से 3, अब हमारे कमाई के 3 जरिया, अब वो बेनिफिशियल हो जाएगा। बट स्टिल आई एग्री विथ यू कि अभी वो जो उसकी स्केलिंग होनी चाहिए, जो सिस्टमेटाइजेशन होना चाहिए, वो अभी हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत है। लेकिन ये लोगों का ध्यान इस पर है, वो काफी रिसर्च हो रहा है। लोग, एक डॉक्टर भरत पटेल हैं, वो हड्डी के डॉक्टर हैं और उनके मतलब बहुत फेमस डॉक्टर, 7-8 बहुत, उनके मैं प्लांट पे गया गुजरात, बहुत बढ़िया काम करते हैं वो। 25-30 गांव का, एशिया का सबसे बड़ा गोबर, बहुत अच्छा, उसे गैस बनाते हैं, उस गैस को बाकायदे बेचते हैं। जैसे ये गैस आता है, वो बायोगैस बनाते हैं। मैं उनका प्लांट देखने गया। क्यों, मैं गुजरात गया तो उनका प्लांट 50 किलोमीटर गाड़ी देखना, मेरे अंदर वो बात है क्या जानने की। हाँ, इस वजह से ऐसा कोई नई चीज पता लग जाएगा तो मैं चला जाता हूँ, मुझे देखना, मुझे अच्छा लगता है कोई नई चीज। तो जो बात आप कह रहे हो अन्ना वाली, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन इसका भी धीरे धीरे जो है, जब कोई समस्या बहुत बड़ा रूप ले लेती है ना, तो इस पर सोच, रिसर्च, मंथन चल रहा है। और इसमें कहीं न कहीं हम, जनता की जिम्मेदारी है, और सरकार तो इसमें 30 रुपया भूसा भी दे रही है, गौशाला भी बना रही है। लेकिन अब आप पूरे गांव को लड़का छोड़ दे बाहर पैदा करके, तो क्या होगा, वही वाली बात है। नहीं छोड़ना चाहिए ना, हमने तो नहीं अपने बचपन में देखा, अभी भी मेरे घर पे जानवर है मेरे गांव में, लेकिन हम लोग कभी नहीं छोड़। एक सर जैविक उत्पाद से लेकर सर हाँ सर जैविक उत्पाद सर एक गांव में सर मतलब सर उतना सर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सर लोग फंड वगैरह पैसा नहीं होता सर। ठीक, ये देखो, जैविक उत्पाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहने और सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जैविक उत्पाद हमारी जरूरत भी है। ठीक है, इट विल टेक टाइम एज पर माई ओपिनियन। अब जो बड़े बड़े जो ऊपर का लेयर है, जो धनी लोग हैं 20%, वो तो जैविक उत्पाद को चाहते भी हैं और वो उनकी कैपेसिटी भी है। ठीक है, लेकिन इस दिशा में भी समय लगेगा, और जैविक उत्पाद की एक अच्छी दिशा में डिस्कशन और कहानी शुरू हो गई है। ये भी बहुत जल्दी, जो आपका क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समय लेगा। क्या अभी ये जो है इसका शुरुआती दौर है, मैं तो ऐसे मानता हूँ। लेकिन एक माहौल बन गया, हर आदमी सोचने लगा, जैसे आप ही चर्चा कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और एक बार जब सोच बन जाती है ना, तो फिर रास्ते बनते जाते सर हैं। हम लोगों ने सर करने की सर सोचा था, लेकिन सर हमारा जो एरिया सर बुंदेलखंड है सर, वहां पे उतना सक्सेस नहीं हो पाया सर, मतलब इट विल टेक टाइम बट इट विल सक्सीड। वो जब होता है ना, तो फिर जैसे यही बिजली, इसका सोलर का, मैं नेडा में था, 10 रुपया कुछ पैसा नीलामी पहला गया था यूनिट का, आज 2 रुपया 2.5 रुपया, और लगा था, लेकिन 10 साल लगा। अगर उस समय हम छटपटाते तो नहीं होता, वो सब चलता है। और जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा, लोग ज्यादा ऑर्गेनिक खाना शुरू करेंगे, तो डिमांड जैसे बढ़ेगी, तो कॉस्टिंग अपने आप डाउन होगी। अभी डिमांड भी कम है, तो मिल रही सर इससे सोलर। हाँ सब्सिडी भी मिल रही है उसके अपने और दूसरे प्रोसेस का। एनीथिंग और बताइए। सर पहली बात तो सर खेती, मतलब कि गांव से सीधा हम समझते हैं कि खेती,
और सर आजकल जो किसान का लड़का है वो किसान बनना नहीं चाह रहा सर, पहली बात तो सर ये है। और सर वो किसान नहीं बनना चाह रहा तो सर पहली बात तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो पहली बात तो रेट बढ़ेंगे सर। तो वही चीज सब उसे कैसे समझाएं कि मतलब कि हम उस चीज में कैसे इन्वॉल्व होंगे कि किसान खेती हम ज्यादा करें, एग्रीकल्चर से हम ज्यादा जुड़े। समझ गया, तुम मेरी बात, बैठो। तो खेती चूंकि घाटे का सौदा है, खेती घाटे का सौदा, किसी को खेती नहीं करना चाहिए। यही हम मॉडल गांव में समझाते हैं। हमारा मॉडल गांव में 3 पार्ट है। पार्ट 1 इज द विलेज मैनिफेस्टो, जिससे हम वो जो 3 समस्याएं बताए थे उसको हल करते हैं। दूसरा हमारा उसका पार्ट है चेंज मेकर, गांव के जो अच्छे लोग हैं, रामशरण टाइप का गांव में अच्छे लोग हैं, उनको पकड़ते हैं और उनको बेस्ट प्रैक्टिसेज पे ले जाते हैं, उनको वहां सिखवाते हैं। आप ही के जिले में एक डेयरी से बहुत बड़ा अरबपति खरबपति है। अब आप डेयरी चलाते हो, गरीब हो, वही बगल वाला जो है 4 व्हीलर से चला, तो हम गांव के अच्छे लोगों को ले जाकर के वो जो डेयरी खरबपति वाला उससे जाओ, उसे गुरु बनाओ, सीखो और आकर के रिप्लीकेट करो। ये हमारा दूसरा है चेंज। तो पार्ट 3 यही है, नेवर डू एग्री बिकॉज दिस इज ए लॉस मेकिंग प्रोसेस। आग लगा दो खेती को, क्या करो, एग्री बिजनेस करो। जाओ गुजरात, वहां कोई खेती नहीं करता। अभी मैं 4-5 दिन पहले पढ़ रहा था, कांस्टेबल की नौकरी छोड़ा, वो क्या कांस्टेबल था। अब पैरेलल में उसने क्या किया, कुछ अपना खेती होती जो जमीन थी उसमें कुछ खेती होती किया, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, कायम कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दिया अपना। वो माइंड सेट की बात है। तो इसीलिए सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक फार्मूला लेके आई है कि गांव वाले मिलके कंपनी बनाएंगे और गांव वाले मिलके कंपनी चलाएंगे और घाटे को मुनाफे में। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी का नाम क्यों है? क्योंकि वो कंपनी के मालिक है। तो सरकार ने कहा, कंपनी अधिनियम में स्पेशल चेंजेस किए to make the villagers owner of a company like in urban areas। ठीक है, तो ये आप मॉडल गांव को पढ़िए। तो लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं इतने आसानी से नहीं होगा, ये होगा मजबूरी में। क्या नौकरी मिल नहीं रही है? शहर में आओगे तो ना पानी शुद्ध, ना हवा शुद्ध, ना दूध, सब मिलावट है। ठीक है, अभी जब कोरोना आया तो कहाँ शरण मिला? बुरे दिनों में गांव में डिमाइग्रेट हुए। तो अब लोगों का फोकस गांव की तरफ है। मजबूरी में आप लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे, पढ़ा लिखा तबका जाएगा और वहां एक्सपेरिमेंट करेगा, इनोवेशन करेगा और फिर गांव से जो भी किसान भाग रहा है वो फिर। सर आजकल सर देखते भी सर, मतलब जो लोग अफसर बन जाते हैं उसका रिटायरमेंट के बाद वापस अपने गाँव जाते हैं, उसके लिए सर मतलब काम भी। बताओ, अफसर है, जब तक तो अफसर थे तो ना अपने बाप को पूछे, ना अपने ताऊ को पूछे, किसी को ना पूछे। तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें कौन पूछेगा? तो गांव में नहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे? गांव में तो कुछ चाचा चूची ताऊ ठेला वाला मिले। अफसर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, और विशेष कराइए अफसर के साथ, वो किसी को नहीं पूछता है। धीरे धीरे आया, गाँव छोड़ा, जिला छोड़ा, गाँव छोड़ा, परिवार छोड़ा, छोड़ते छोड़ते मियाँ बीबी सिमट गया। क्या बच्चे शादी वादी होके भाग गए? ठीक है, अब मियाँ बीबी हैं। जब तुमने जिंदगी में किसी की सपोर्ट नहीं करी, किसी का नमस्ते नहीं लिया, अंग्रेज IAS बन के जिंदा रहे, तो रिटायरमेंट में कोई बात नहीं करता। आई हैव सीन दिस। इसीलिए देखो हम तो आप लोगों की ना सीधा बात करते हैं कि दोस्त बनो, जैसे रिटायरमेंट के बाद तुम ही आओ, 1 कप पानी दे दो मुझे। हाँ, ये तो गिफ्ट है। ठीक कह रहे हो। और हाँ, ओके, Thank you, sir. Thank you for Accepting this invitation and giving a wonderful talk, and really it motivates our students, and I hope that you will be going to be connected with us. Yes. Thank you so much, sir. Sir, camera, camera. Sir, स्टेज हाँ हाँ। So you might be knowing all the problems, also special problems. मैं कुछ नहीं, मैं निकलूंगा बस, चाय और नहीं होगा। देखिए आपका एक पकौड़ी खा लूंगा, ये मिर्चा वाला।
तो आई होप कि सभी लोगों ने एंजॉय किया और Yes, sir. और Yes, एक sir. चीज ध्यान रखिए कि कोई भी शुरुआत जो होती है अचानक से ऊपर से नहीं होती, नीचे से आने लगता है। I invited him just personally just because I read his total biography. I understand that how a person from ground can raise up to the highest, and still he is doing. So that's why one thing is that his personality has inspired me, and I am expecting that you all people will do wonderfully in your life. Thank you. Thank you. तो मैं भी आ रहा हूँ मैनिफेस्टो ज्वाइन करने। Very nice. Bye.